is the last topic of first chapter, nature and significance of management, coordination. We have studied management and functions of management, importance, characteristics, etc. And this is the last topic, coordination. Coordination means synchronization, है ना? जो coordination जो एक word, it is a very common word, है ना? You might have used in your daily life, है ना? जब when two dancers are dancing together, what the judges say? Yeah, you have very good coordination between you guys, है ना? The coordination between you makes this dance perfect. Okay, so likewise coordination is also very much required in management too. See, whenever there are more than two people, two or more than two people, है ना, उनके बीच में तालमेल बिठाना, समझ रहे? तालमेल बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, कोऑपरेशन इज डिफरेंट थिंग, है ना. कोऑपरेशन मीन्स एक दूसरे का साथ देना, है ना, या एक दूसरे के साथ कोई भी काम करना, एक दूसरे के साथ देते हुए ना. एक अगर कोई आगे बढ़ जाए तो दूसरा उसके लिए वेट करेगा, कोई पीछे रह गया तो वो उसको उसके साथ रहने के लिए थोड़ा फास्ट चलेगा. तो दैट इज काइंड ऑफ कोऑपरेशन, दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. Coordination is different kind of thing, and you might have confusion between these two, but these are two different things. So coordination means synchronization, है ना. Whatever the steps, whatever the activities, whatever the actions they are doing, उनके बीच में तालमेल बिठा, उनके बीच में synchronization बिठाना is coordination. Okay? मीन्स होता है जब गाड़ी के चार पहिए है ना, तो चार पहिए एक साथ घूमेंगे ना, तभी तो गाड़ी आगे चलेगी. उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे. क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट. उन चारों व्हील्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वही कहलाता है. वो जो सिंक्रोनाइजेशन उनके बीच में, दैट इज कोऑर्डिनेशन. ओके, एंड कोऑर्डिनेशन इज दैट मच रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट टू. तो कोऑर्डिनेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन डिफरेंट एफर्ट्स ऑफ वेरियस यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एज यू ऑल नो, मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, है ना. तो एज द यू कैन से जैसे जैसे मैनेजमेंट, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स भी बढ़ते जाते हैं. So we will discuss the characteristics of coordination. What are the features of coordination? You can say the first point is all-pervasive function. Coordination is an all-pervasive function, and as you already know, what is all-pervasive? All-pervasive means which is present everywhere, omnipresent, right? The coordination is present everywhere. See, it is not limited to top level management, middle level or lower level, है ना. Or it is not limited to only private or government enterprises or NGOs. No, it is present everywhere. It is required in all the kinds of organization at all the levels of the management, whether it is top level, middle level or lower level management. ठीक है. Second है is a continuous process. Coordination is a continuous process. See, it never ends, है ना. ऐसा नहीं है आज जो हमारा टास्क था वो खत्म हो गया, कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया. No, coordination will be continue in the organization till the organization exists, or till there are number of people in the organization. If there are a lot of people in the in organization, all the works are divided in different departments. They are divided in groups, है ना. Employees are divided in groups. And these all the groups are doing their own work. They are doing their own efforts, है ना. उनको जो काम दिया गया है वो अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना. अब वो अपना काम कर रहे हैं. They are doing at their individual level, but at the end they have to do it for the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब ये अलग अलग ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, अब उन सारे ग्रुप को एक साथ लाने का काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन करता है ना. उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो उनकी जो इंडिविजुअल वर्क है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा. तो कोऑर्डिनेशन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. whenever there are number of people, coordination will be there. So coordination is a continuous process. It will last. It is an activity which never ends. It starts with planning, you can say, and it continues even after controlling. जब controlling में हो जाता है उसके बाद भी coordination रहता है, ये खत्म नहीं होता. Next, it integrates group efforts. As I said, people are divided in groups and all the groups are doing their own work, है ना. तो वो सब अपने अपने काम कर, तो अगर वो सिर्फ अपने अपने काम करते रहेंगे तो ऐसा फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कभी अचीव नहीं हो पाएगा. तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इट इंटीग्रेट्स दिस ग्रुप एफर्ट्स. ये जितने भी ग्रुप्स में जो उन्होंने काम किया उन सारे ग्रुप को एक काम में कन्वर्ट करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है ना. इन सारे कामों को एक काम में करने का काम कौन करता है?
कोऑर्डिनेशन। देखो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना, ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं। दिस यू कैन से दीज आर द ग्रुप्स, है ना, और ये अपना अपना काम कर रहे हैं। अब इन सारे कामों को इंटीग्रेट करके, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में कन्वर्ट करना, मतलब जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। अल्टीमेट गोल तो खैर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होगा। तो परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? रिक्वायर्ड परचेज करना, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी मैनेजमेंट को चाहिए, तो दिस इज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। सेल्स डिपार्टमेंट का काम है ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा, है ना। एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, एंड वो भी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद मिनिमम कॉस्ट। एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है इन सबको फाइनेंस प्रोवाइड करना और रिक्वायर्ड टाइम पे रिक्वायर्ड फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो अभी सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। अभी सारे कामों को कोऑर्डिनेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन गोल में कौन कन्वर्ट करता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है इन सारे कामों को यूनिफाई करता है, इंटीग्रेट करता है और ऑर्गेनाइजेशन गोल में कन्वर्ट करता है। यू कैन से द अल्टीमेट गोल इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड नेक्स्ट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जितने भी ये जो ग्रुप्स हैं वर्क कर रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स जो अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर एफर्ट्स, है, दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स, दे आर डूइंग देयर एक्शन, दे आर डूइंग देयर टास्क, है ना। अब इन सबके अंदर ये एक साथ लाने का काम है ना। अब यहाँ पे उनके बीच में यूनिटी बिठाने का काम है ना। इसका काम है फाइनेंस प्रोवाइड करना, इसका काम है प्रोडक्शन, इसका काम है सेल्स, इसका काम है परचेज। अब ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे काम एक साथ होना जरूरी है, समझ में। जब परचेज कर रहा है, मतलब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल्स की जरूरत हो, तभी परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदे, है ना। और यू कैन से थोड़ा सा पहले, जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जरूरत हो, ये उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे। अब सेल्स डिपार्टमेंट जैसे ये प्रोडक्शन करेगा, उसको बेचने का काम करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी इनको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, ये फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तो मतलब सर ये यूनिटी से वर्क करेंगे, एक साथ काम करेंगे। इनको जो भी काम करना है एक साथ करना है, और ये भी कौन एंश्योर करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। नेक्स्ट है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। As we have said, it is all pervasive, it is omnipresent, it is present everywhere, whether it is top level, middle level or lower level. It is the responsibility of all managers. All managers need to do this particular job, or you can say the job of coordination, right? And next है deliberate function. Coordination ऐसे नहीं हो जाता ना, अपनी मर्जी से नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन है, जो डेलिबरेट मतलब सूझबूझ के साथ किया गया काम है, सूझबूझ के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाई द कोऑर्डिनेशन इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई वी आर स्टडीइंग इट एज अ डिफरेंट टॉपिक, है ना। तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला है ग्रोथ एंड साइज। इन टुडेज सिनेरियो यू कैन से द मार्केट हैज टोटली चेंज्ड। Today's market is totally different from that market which used to be 100 years ago. So the activities have increased, number of people have increased, है ना, number of functions and organization doing has increased. तो जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे जैसे साइज बढ़ी, साइज कैसे बढ़ी हुई कैसे पता करोगे? जब सेल्स बढ़ने लगती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं, देन वी कैन से द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग और इट्स साइज हैज इंक्रीज्ड, सी, एनलार्ज्ड। तो जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, साइज बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते जाते हैं, एंड व्हेन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजेस, उनके बीच में ये काम करना मुश्किल होता है, या फिर उनसे काम करवाने के लिए इस चीज का होना बहुत जरूरी है। When number of employees are large, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब तक वो कोऑर्डिनेशन से वर्क नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। As I told you here, different departments are doing different kind of jobs, different kind of function. तो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, तो अब उन सबके बीच में तालमेल बिठाना है ना, उनको सबको इंटीग्रेट करना है। उनका मतलब जो लास्ट टारगेट होगा वो ऑर्गेनाइजेशन गोल हो, ये कौन एंश्योर करेगा? कोऑर्डिनेशन। दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन इज रियली इंपॉर्टेंट।
because all the departments have their functional differentiation, है ना. The kind of functions they are doing is different from each other, and that is to be ensured by coordination only, है ना. वो जो भी काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अल्टीमेटली अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, दिस हैज टू बी एंश्योर्ड बाय कोऑर्डिनेशन ओनली. Specialization, as you can say in today's scenario, all the works are depending on the specialization. Every person is doing their bit to be specialized in whatever the task or whatever the work they are doing. If I am a teacher, so I will be striving to be specialized in business study. I will try to be the best teacher in business study. अब now see, when the specialization has achieved, जब किसी पर्सन को स्पेशलाइजेशन मिल गया है ना, ही हैज बिकम स्पेशलाइज्ड इन दैट वर्क, इन दैट जॉब, तो क्या होता है, ईगो, है ना, घमंड, प्राउड आ जाता है उनको. एक आइडिया हो जाता है, एक नोशन हो जाता है दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पर्सन, दे आर द ओनली पर्सन हु नोज दिस वर्क, एंड दे स्टार्ट जजिंग, है ना, दे स्टार्ट सेइंग द वे आई एम सेइंग, डू इट. बट सी, when there are a number of people, this kind of behavior is really not appreciated, or you can say it will not result in organizational goals, है ना, in fulfilling organizational goals. तो जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है, उनके बीच में एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो है कोऑर्डिनेशन. अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो ये स्पेशलाइजेशन किसी काम का नहीं रहेगा. एग्जाम्पल राउंड, conflict between individual interest and organizational interest. If an organization consists of employees and employer, जो काम पे रखता है और जो काम पे रहता है ना, तो एम्प्लॉयज का काम क्या रहेगा, लॉट ऑफ मनी, अ ह्यूज सैलरी, है ना, एक ऐसा काम जो फ्री ऑफ टेंशन रहे, आराम से हम काम करें और पैसा मिलता रहे, है ना. सी, अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स, है ना, we all belong to the animals category. तो एनिमल्स का बिहेवियर थोड़ा सा हमने आ जाता है, जहाँ हम ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ भी ना करें, हम आराम से बैठे रहे, हमें बहुत अच्छा काम मिल जाए, हमें बहुत अच्छी सैलरी मिल जाए, हमें सारे पर्क्स बेनिफिट्स मिल जाए. और वहीं पे जो एम्प्लॉय है, ही इज टू एन एनिमल, राइट, वो भी एनिमल किंगडम से ही बिलोंग करता है. उसका क्या टारगेट रहेगा, कम से कम पैसा देना पड़े मुझे और ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए मेरा, है ना. तब यहाँ पे इन दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट है और इनके बीच में क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट. दे फाइट विद ईच अदर, और यू कैन फाइट मीन्स नॉट दैट डिशोम, बट या दे हैव डिफरेंट आइडियाज, दे हैव डिफरेंट नोशंस. तो इनके बीच में जो वो भेदभाव या जो मन मुटाव है वो हो जाता है, और इसको दूर करता है कोऑर्डिनेशन. इट इज ये कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. एंड लास्ट है इम्प्रूव गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा कोऑर्डिनेशन मीन्स अच्छा काम मीन्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, और इस वजह से धीरे धीरे प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, सेल्स जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, गुडविल जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छी होगी. दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.